Hello students, welcome you all in my class, in the class of Business Studies, class 12, where we were dealing with the staffing concept and we have dealt the various concepts related to the concept, features of staffing, the significance of staffing, related the various concepts related to the human resource management, the evolution of staffing, and we have also deal with the various process and element involved in the staffing activity, staffing function, where we have deal with the recruitment, selection and many more things. Today we will go through the external recruitment of the company, and before starting all that previous topic, before starting the external recruitment, I would like to remind all the concept before, whatever we have deal it before, and later on we will deal with the external recruitment, and company will deal with the how the company will deal with the external source of recruitment. Let us start with the concept of staffing and various activities related to that. Okay, so the staffing is the staffing an activity of identifying and fulfilling the vacancies of human resource and maintaining it for a long time. For a long time. So when we talk about the various activities of staffing, we have deal with the identification of analysis of workload and workforce. A part of that, we analyze, if we found that there is a requirement of workforce, then we identify the recruitment. Thereon, the selection process take place, where we identify the best candidate. After that, we make some placement and orientation, and later on, we also conduct the training and development program and such other activities related to that, as performance appraisal, as the activity related to the compensation plan, promotion and career planning, etc. etc. Okay, so when we talk about recruitment, it was the disclosure of disclosure of vacant post in the organization before the public or internal members. Okay, this disclosure are made on by two different sources. First one is internal and second one is external. When we talk about internal source of recruitment, it means we are talking about promotion and transfer. It means we are talking about promotion and transfer. And when we talk about external source of recruitment, we had a lot of options discussed before it, as the direct recruitment, casual collar,
campus recruitment, campus recruitment, campus recruitment, and advertisement. These things have clearly discussed before us in the previous lectures, and apart of that, we could talk about regarding placement agencies. We could talk about placement agencies and employment exchange also. Employment exchange also, where the government or the private individuals play the role of middleman between the job provider and the job seekers, and help them to get interaction with each other regarding their needs. Okay, if this middleman is the governmental body, then it is a employment exchange, or otherwise, if such middleman is an individual or group of individual, then such category is the placement agencies. And here we had talked about all these internal and external sources in the previous classes, and later on we will deal with the various merits and demerits of internal sources of recruitment, where we have discussed the importances of internal sources and some outcomes regarding that, where we have talked about that internal source of recruitment is a source of recruitment wherein which we found some already introduced employee. That is why there is no need of placement and orientation. It is a less time taking process, lesser time taking process, motivate the economical activity also, and such a various fruitful activity is take place when we make some recruitment with the internal sources. But the basic outcome of the internal resources, that we have to deal with the same skills and same individuals. Due to having them, even after having them, we found the vacancies, and that is why this method is not so much useful than a large vacancy, when a large human resource, when a large workforce is needed in the organization, and when the large workforce is needed in the organization, or huge or extra skilled HR is needed, then a situation take place where we found that external source of recruitment would be a considerable option towards us. Okay, and when we talk about the various merits and demerits of external sources, let us talk the advantages and disadvantages of this source of recruitment in this regard. So let us talk about the various merits and demerits of
external source of recruitment, where we have discussed that the external source of recruitment is the mode of recruitment where the general public collect the information of vacancies and shows his desire and come in the interaction of the organization and entitled in the selection program, and with the help of that the organization find the best candidate among all and who is most suitable for the vacant job, and the person who is selected from this process, from this recruitment source, gives the following merits to the organization, that the external source of recruitment gives the wider choice to the organization, as with the help of external sources we came in the interaction of general public, and due to the general public's mass and we are able to find the best candidate among all. As if we want to find some best candidate, and we are also willing to evaluate all the individuals and evaluate and ascertain the most desirous candidate among all. So in that case we have to assure that how much the candidate we are evaluating, मतलब हम जितने ज़्यादा कैंडिडेट हम इवेलुएट करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे बेटर कैंडिडेट के आने के, कन्वीनियंट जो है कैंडिडेट के अवेल होने के, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी कि जितने ज़्यादा जो है कैंडिडेट होंगे उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, और जो एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा फिल्टर्ड होकर आएगा, नो डाउट उसमें जो हमारी कैपेबिलिटी है ज़्यादा होगी। लेकिन ये फिल्टरेशन का प्रोसेस तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास फिल्टर करने के लिए मास हो, यानी जैसे ट्रांसफ़र और प्रमोशन के केस में हमारे पास एक दो एम्प्लॉयज़ या फ्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते थे, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उनकी इवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है सीरियसली कंडक्ट कराएं, तो इट मे पॉसिबल दैट दीज एम्प्लॉय कुड those who are already available in the organization could not fall in the criteria of the desirous candidate for the vacant job। लेकिन जब हम यही काम जनरल पब्लिक से करते हैं, हमारे पास एक बड़ा मास होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को ज़्यादा थॉरली इम्प्लीमेंट करके एक बेटर कैंडिडेट फाइंड कर सकते हैं। यानी एज अ होल वी कुड से दैट due to the external source we have the mass as in the form of general public to give a wider choice to make a filtration process and identify the best candidate among all। हमारे पास जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उतना अच्छा जो है कैंडिडेट हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद जो है हम जब फ्रेश टैलेंट की बात करते हैं, तो फ्रेश टैलेंट मीन्स the individuals who are not engaged in any organization, not engaged in any organization, are ultimately physically, mentally, morally more stronger and can do more devoted वर्क एट दियर वर्क प्लेस। मीन्स जो एम्प्लॉय कहीं भी इंगेज नहीं है, हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में यूजुअली उसी को बुलाते हैं, या यूँ कह लें कि वो एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पहले से जुड़ा नहीं है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डीमेरिट्स, उनकी वर्किंग कंडीशंस से जो होने वाली फिटनेस है या जो टायर्डनेस है उससे अवेयर नहीं है, उससे इंट्रोड्यूस नहीं है, तो इनिशियली अपनी फर्म में अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, वर्क प्लेस पे अपने इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा जस्टिफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटेड तरीके से काम करेगा, और ऐसी कंडीशन में हम उसके फ्रेश टैलेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। तीसरी मेरिट है हमारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब कि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी,
जितना ज़्यादा मास सराउंडेड होगा हमारी रिक्रूटमेंट में, उतनी ज़्यादा जो है हमारे कैंडिडेट को इवैल्यूएशन प्रोसेस में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी दिखाने की इच्छा होगी। और ऐसी कंडीशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आएगी और इस कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इन दैट केस मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय विल बी फाइंड आउट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय, जो भी कैंडिडेट हैं, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू बी सेलेक्टेड, एंड thus we came to know that how much up to how much extent we could find an efficient employee. Apart of that, wider choice की अगर हम लोग बात करें तो wider choice, यहाँ देखिए wider choice रिपीट हो गया है अल्टीमेटली। ठीक है, वाइडर चॉइस की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली है। इसके बाद कुछ डीमेरिट्स की बात हम लोग कर लेते हैं। डीमेरिट इन द सेंस दैट इज कॉस्टली प्रोसेस, एज वी आर डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ मास, दैट इज व्हाई इवैल्यूएशन प्रोसेस इज आल्सो अ कॉस्टली प्रोसेस दैट डील्स विथ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स and that deals with the lot of filtration process, and that is why it is a costly process, and due to it is also again it is dealing with a lengthy process, that is why because the general public, as you can say, the mass are evaluated one by one or stage by stage, and that is why finding the best candidate is a quite lengthy process. जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, हमें हमारे कैंडिडेट को फाइंड करने में उतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा डिससेटिस्फैक्शन की कंडीशन भी आ सकती है अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई। वो ये सोचेंगे कि हमारे होने के बावजूद, हमारी रिकमेंडेशन होने के बावजूद जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमें कंसीडर नहीं कर रही है, बल्कि एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ के बीच जो है, एक्सटर्नल कैंडिडेट के बीच इवैल्यूएशन कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में उनके दिमाग में, उनके मन में कुछ डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ सकती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल टू अस। अगर कुछ बेसिक आउटकम्स हटा दिए जाएं तो इट इज़ अ वेरी बेटर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दैट इज ऑप्टेबल बाय द कंपनी एंड बाय द इंस्टीट्यूशन। And later on we will talk about the process of selection, the concept and significance of selection, and the various steps regarding involved in it when we perform or we conduct the process of selection. So let us talk about what is selection procedure. Okay, so when we talk about selection, it means finding the best person for the vacant job। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उस जॉब के रिगार्डिंग हमारा जो एम्प्लॉई है, हमारे जो कैंडिडेट है, उनमें सबसे बेटर कैंडिडेट कौन है, सबसे बेटर एचआर, पोटेंशियल एचआर कौन है। ठीक है, उस कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना, दिस इज अ बेसिक थीम ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, हमारी जितनी भी कैंडिडेट आए हैं, जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस में लगे हुए हैं, उन कैंडिडेट में से सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है जो हमारी फर्म को फेवर करेगा, जो हमारी फर्म की नीड्स एंड वांट को फुलफिल करेगा, जो हमारी वैकेंट पोस्ट की जॉब को कंप्लीट करेगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा। ऐसा कैंडिडेट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कंप्लीट साइंटिफिक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिलेक्शन प्रोग्राम। So what is this selection program? What are the main steps involved in it? Let us talk about that. So let us come to the selection process. Selection process.
जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बात करते हैं, तो अल्टीमेटली वी आर डीलिंग विद द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी जो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट द कैंडिडेट इज कैपेबल और नॉट, और उससे हमारी फर्म से इंट्रोड्यूस कराते हैं और खुद उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कुछ टेस्ट भी कराती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी कराती हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ इररिलेवेंट मास फ्रॉम द डिजायर्ड कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनमें से एक्चुअली इंटरेस्टेड कैंडिडेट और एक्चुअली कैपेबल कैंडिडेट कौन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन से कैंडिडेट अच्छे हैं और कौन से कैंडिडेट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में, या किन कैंडिडेट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है हम एक सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में हम जो मोरल, मेंटल और फिजिकल टेस्ट लेते हैं हमारे एम्प्लॉय का एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, एज पर द नीड ऑफ जॉब। इस सिलेक्शन टेस्ट में जो भी डिजायर्ड कैंडिडेट होते हैं, जो भी कैपेबल कैंडिडेट होते हैं, उनकी सिलेक्शन होकर के उनको आगे के स्टेप्स के लिए जो है मूव कराया जाता है, जहां पे उनसे एम्प्लॉयर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है और उनका इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयर के साथ, जहां वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ जो है इंटरेक्ट होते हैं, वेरियस तरीके से जो है हमारा एम्प्लॉयर उनको इवेल्युएट करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि दैट दे आर कैपेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, क्या इनके जुड़े रहने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, क्या इनके जुड़ने से हमारी सोसाइटी जो है किसी तरीके से हार्मफुल तो नहीं होगी, या ऐसी तमाम बातें जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इमेज, सोशल इमेज, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। इन चीज़ों को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है हमारा एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जब इस सिलेक्शन प्रोसेस के इस स्टेप पे जो है हमारा एम्प्लॉई जो फिट बैठता है, सक्सेसफुल निकलता है, तो इसके बाद जो है हम उसके फीडबैक की जो है या उसके रेफरेंसेस की एनालिसिस करते हैं, रेफरेंसेस और फीडबैक की एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो एम्प्लॉय किसके रेफरेंस से आया है या इससे पहले जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका फीडबैक कैसा रहा है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद जो है हम ये अश्योर करते हैं कि क्या ये एम्प्लॉई जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करने के लिए कैपेबल है या किसी अदर एम्प्लॉय को हमें कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है अल्टीमेटली जब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा काम किया है या जिस भी रेफरेंस से आया है उस रेफरेंस में भी मतलब वजन है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं, दैट इज द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन, डिसीजन ऑफ सिलेक्शन। और अल्टीमेटली इसमें से किसी भी स्टेप पे अगर हमारा एम्प्लॉय फिट नहीं बैठता है देन ही विल बी रिजेक्टेड। अगर वो सारे स्टेप्स को पास करता जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टेप को पास करता जाएगा नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करता जाएगा। अदरवाइज किसी भी स्टेप पे वो फेल होता है, ठीक है, किसी भी स्टेप पे फेल होता है तो अल्टीमेटली वो रिजेक्ट होकर के ऑर्गेनाइजेशन की इवैल्यूएशन प्रोसेस से बाहर चला जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वेयर वी हैव केम टू नो
दैट कि एम्प्लॉय का सिलेक्शन कैसे होता है, उसके सिलेक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें कंडक्ट होती हैं। इसके नेक्स्ट क्लास इस लेक्चर में हमने ये सिलेक्शन प्रोसेस को की आउटलाइन को समझने की कोशिश की। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक स्टेप को डीपली समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि केस स्टडी इस सिलेक्शन प्रोसीजर से किस तरीके से केस स्टडी भी आ सकती है। सो होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. Meet you in the next class. Thank you very much.